Hello learners, in the previous video we have done that internal energy is a state function and internal energy changes due to two reasons, that is heat and work done. And we have done the expression that change in internal energy delta U is equal to Q plus W if both the factors are responsible for the changes in the internal energy. If Q is zero, अगर heat absorb या evolve नहीं हो रही और अगर work done भी on the system या by the system नहीं है, then there will be no change in the internal energy. Now we are going to do the applications of internal energy. How we will apply this, because sometimes the reactions takes place in such a way that the gases they are evolved and we use those gases for the mechanical work and they will help in the heat generation also. Then how to relate all those changes with the internal energy? This we are going to do in the form of pressure volume work. Now if the work is done on the system, then it is taken as positive. If the work is done by the system, then it is taken as negative. This we have done in the previous video also. Now we have taken the system here that in a cylinder the gas is enclosed and it is fitted with a frictionless piston. Now suppose the volume is V1 of enclosed gas and at that time the pressure is P. And now we have applied the pressure on the piston. हमने बाहर से pressure apply किया तो क्या होगा? Piston will move inward. वो कितनी अंदर चली गई वो हमने किससे शो किया कि इतना डिस्टेंस उसने अंदर मूव कर लिया. वो डिस्टेंस कितना था? That is represented by L. And now the final volume have reached VF. पहले वॉल्यूम कितना था? VI initial. अब जब हमने उसको कंप्रेस कर दिया, we have done work on the system, तो फाइनल वॉल्यूम इससे कम हो गया, रिड्यूस हो गया. और प्रेशर कितना हो गया? जितना इसके अंदर खुद का प्रेशर था प्लस हमने कितना प्रेशर अप्लाई कर दिया, दैट विल बी द टोटल प्रेशर इनसाइड इट. नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मींस एक चीज अपनी जगह से कितना मूव कर गई. नाउ हियर हाउ मच द पिस्टन हैव मूव्ड? it is moved by a distance of L. So L is the displacement here. Work done is equal to force into displacement. Now we also know that pressure is equal to force upon area. So we can rearrange it and write it as force is equal to pressure into area. अब क्योंकि हमारे पास force की वैल्यू आ गई pressure into area, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसे डाल दें इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल. इस F की जगह प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल इज द सेम. नाउ ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, क्योंकि हमने जो प्रेशर अप्लाई किया उससे वॉल्यूम में चेंज आ गया. क्या था? पहले इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड था, अब इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो गया. मीन्स देयर इज चेंज इन वॉल्यूम. अब वो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी किसके इक्वल हुआ? जितना डिस्टेंस वो पिस्टन मूव किया into area of cross section of this piston. L into A. L is the distance which is moved by the piston and A is the area of cross section of the piston. Also we can say that due to applied pressure the change in volume is V final minus V initial. अब कितना वॉल्यूम हो गया? माइनस पहले कितना वॉल्यूम था. अब क्योंकि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कम हो गया इनिशियल वॉल्यूम से, इसका मतलब अगर हम यहाँ फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यूज अगर हमारे पास हो और हम वो इंक्लूड करें तो हमें डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. नाउ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा वी. तो हम यहाँ क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एरिया इंटू एल. ए इंटू एल की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी. और डेल्टा वी किसके इक्वल है? वी एफ माइनस वी आई. अब क्योंकि वी एफ कम है इसलिए वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो हम इसके लिए इसे क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल. क्योंकि हम बाहर से प्रेशर लगा रहे थे, ये माइनस साइन बाय कन्वेंशन क्यों आया?
क्योंकि VF इज लेसर देन VI इन दिस केस. सो वर्क डन इज इक्वल टू P external into delta V. So from here we can find the work done कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है और हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है. नाउ इफ द चेंज अगर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर यही वाला चेंज बहुत सारे स्टेप्स में हो, अगर ऐसे ही चेंज होता रहेगा तो हम सभी वर्क डन को सम अप करेंगे तो हम इस पे इसके आगे समेशन लगा देंगे. लेकिन अगर यही वर्क डन हो रहा है मींस इनिशियली द वॉल्यूम इज दिस वन एंड फाइनली द वॉल्यूम इज दिस वन. लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि हमने इकट्ठा एक ही बार प्रेशर लगा दिया और पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर गया. लेकिन अगर हम यही काम स्टेप्स में करें कि पहले थोड़ा सा कंप्रेस किया, फिर और थोड़ा सा कंप्रेस किया, फिर और थोड़ा सा कंप्रेस किया, सो बाय डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, at each step there is a little bit change in the distance which leads to the little bit change in the volume and ultimately at each step small amount of work is done. हर एक स्टेप पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस चेंज होगा जिसकी वजह से हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज होगा. ड्यू टू दैट चेंज इन वॉल्यूम हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा. तो जब फाइनली थोड़े थोड़े स्टेप से पहले हमने इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए तो हम हर स्टेप पर हुए वर्क डन को एड ऑन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ जाने तक हमने पूरा कितना काम किया. चाहे हमने स्टेप्स में ही किया लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो हर स्टेप पर जो काम हुआ था उन सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ if the change occur in infinite number of steps, अगर चेंज बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है then distance changes by dl, हर स्टेप पर डिस्टेंस dl से चेंज होगा और वॉल्यूम dv से चेंज होगा. इसलिए हम लिख सकते हैं कि हर स्टेप पर चेंज इन वॉल्यूम is equal to a into dl. Why a into dl? Because a is the area of cross section of the piston और पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है. इसलिए हमने क्या लिखा, dv इज इक्वल टू a इंटू dl. एंड एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर जो थोड़ा सा वर्क डन होगा थोड़े से वॉल्यूम चेंज की वजह से, वी कैन राइट इट एज dw इज इक्वल टू p एक्सटर्नल इंटू a dl. हमने डेल्टा v की जगह के लिखा a dl क्योंकि हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था. Now ADL is equal to DV, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं DW is equal to P external into DV. Now after reaching final volume, अब हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए जहां तक हमें उसे कंप्रेस करना था. अब वहां तक जब पहुंचेंगे तो वहां टोटल वर्क डन कितना हुआ, हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में टोटल कितना काम करना पड़ा, चाहे हमने वो स्टेप्स में ही किया. So all that small work done will get integrated. This is the sign of integration and the expression becomes W is equal to minus integration of P external into dV within the limits VI to VF, V initial to V final. Now, what this P external is? P external is P internal plus DP, कि उसका अंदर पहले खुद का कितना प्रेशर है और हम बाहर से हर स्टेप पर कितना प्रेशर लगा रहे थे. That will be the total pressure. तो हम इस P external की जगह क्या लिख सकते हैं, P internal plus DP, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे थे. अगर यही रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हम इसे प्लस माइनस DP लिखते. रिवर्सिबल मीन्स कि आप अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है. अगर अंदर जा रहा है तो प्लस DP, अगर बाहर जा रहा है तो माइनस DP, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा if work is done by the system. Now here we are doing work on the system, that is why we are increasing the pressure. Now next step I have skipped here is that we have to multiply dV internally. इस ब्रैकेट के अंदर हमें dV को मल्टीप्लाई करना है. जब हम इस dV को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, P इंटरनल dV प्लस dP dV, जिसमें P इंटरनल dV तो हमारे पास रहेगा लेकिन dP dV की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप पर
चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए हम इस वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे एंड वील बी लेफ्ट विद P इंटरनल dV हियर। नाउ वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। अब वहां से अगर हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, nRT by V। नाउ इंट्रोड्यूसिंग दैट वैल्यू हियर, P इंटरनल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, nRT by V, where n, r and t all are the constant terms. So we'll take them out of the sign of integration because of the constant terms, हम इन्हें इससे बाहर निकाल लेंगे। Now we are having the expression here minus nRT integration within the limits vi to vf into dv by v। अब इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस nRT नेचुरल लॉग vf अपॉन vi, और अगर हम इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो we'll come up with work done is equal to minus 2.303 nRT log vf upon vi। So by using this expression we can calculate the work done on the system. Now we have done the expression delta U is equal to W Q plus W, and from here we have arrived at the expression that work done is equal to minus P external delta V। तो हम अगर इस W की जगह इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस करें तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P external delta V। Now if the work is done, if the system is working at constant volume, अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, at constant volume, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया मींस कोई चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम में, वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल नहीं जा रहा, चाहे वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है चाहे वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा देन डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा V ही 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, QV। तो हम यहाँ V क्या शो कर रहे हैं कि QV जो चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। इन द सेम वे अगर हम दूसरी कंडीशन कंसिडर करें कि एट कांस्टेंट प्रेशर मींस कि प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, अगर हम किसी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रेशर कंडीशंस सेम रहेंगी क्योंकि हम उसी कंडीशन पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बनाएंगे। सो इन दैट केस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। सो इन दैट केस द एक्सप्रेशन डेल्टा U is equal to Q minus P external delta V will remain as it is। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज ऑलरेडी इक्वेशन में नहीं है। इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम विल गेटिंग चेंज। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, U2 minus U1 is equal to QP, क्योंकि QP क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वी आर डूइंग इट, माइनस P इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ अब हम प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी दोनों चेंज हो रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस P इंटरनली व्हाट डू वी गेट, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P V2 माइनस माइनस विल गेट प्लस P V1। नाउ शिफ्टिंग दीज टर्म्स हियर, 2 वाली टर्म्स को हम एक साथ कर देंगे, 1 वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे। पहले हम इधर शिफ्ट कर दें U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू QP। नाउ combining the terms of 2 and 1 individually, U2 plus PV2 minus U1 minus PV1 is equal to QP। Now U2
प्लस PV2, और यहाँ इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, U1 प्लस PV1 इज इक्वल टू QP। नाउ U प्लस PV, ये रिलेशन हमें किसके, ये रिलेशन किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। सो U2 प्लस PV2 किसके इक्वल हो जाएगा, H2 के इक्वल, माइनस U1 प्लस PV1 किसके इक्वल हो जाएगा, H1 के इक्वल। इट इज इक्वल टू QP। नाउ H2 माइनस H1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी चेंज, विच इज इक्वल टू QP। तो अब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ गए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू QV, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन QP इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H। एंड वन मोर कंडीशन इज विद अस इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मीन्स कोई वर्क ही नहीं हो रहा, एक्सपेंशन मीन्स वैक्यूम में एक्सपैंड करती जा रही है गैस, और अगर गैस ही एक्सपैंड कर जाएगी तो P एक्सटर्नल मीन्स हम बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहे, ना अंदर जाने के लिए ना बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो वैक्यूम में हो रहा है। और अगर P एक्सटर्नल ही जीरो हो जाएगा देन डेल्टा U इज इक्वल टू Q ओनली, वर्क डन होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। P external will be equal to 0. In this case, P external will be equal to 0. अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि P external into डेल्टा V। नाउ P external, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रही है वैक्यूम में, P external will be 0, then work done in this case will be 0. So in this way we can use the एक्सप्रेशंस इन आवर वर्क कि अगर कोई चीज हमें गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं तो उससे हम जो वर्क अप्लाई करते हैं उससे हम इंटरनल एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस वी कैन न्यूमेरिकली फाइंड द वैल्यूज आल्सो। थैंक यू।